Cool. So we'll be talking about cracking your first job today. So आप पहले जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आप ध्यान में रख सकते हैं, what all you can you know take care or have a checklist to ensure that you crack your first job. Simran will be just coming in and she'll be touching upon those points. So आपका कोई भी सवाल हो, तो कोई भी करियर रिलेटेड आपने जॉब अप्लाई किया, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी सवाल हो आप चैट बॉक्स से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमरन अभी बस 1 मिनट में आ रही है। या फिर आपको अनम्यूट करने का भी मौका दिया जाए, मतलब आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। So let me quickly introduce Simran so that we can jump into the session directly once she comes. So this part of Apna Community Exclusives. It is a webinar series that we have been conducting for the last couple of months. So these sessions happen every day at 7 p.m. Monday to Friday, and between 3 to 5 p.m. on Saturday and Sunday. We cover a different variety of subjects like Gen AI, spoken English, interview prep, etc. The main objective of these sessions is to help you grow professionally, help in the advancement of your career, and help you get better jobs. So today's session, like I mentioned, is about cracking your first job, a step-by-step guide for new graduates. So for this, we have Simran with us, who will be joining. She's an assistant manager at Times Network. She is a dynamic marketing expert with more than 8 years of industry experience in growth marketing and brand communication. She is known for her ability to turn ideas into impactful strategies. She's navigated various industries with creativity and precision. She has several years of experience as a mentor as well. She's guided freshers, working professionals, fresh graduates. Glad to have her with us today. Yeah, Ajay, आपको कोई सवाल है? You have any questions? Hello, sir. जी जी. Yeah, I can hear you. एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है जी जी. सर, क्या बोलिए. काम क्या करना है? वर्क क्या है सर? वर्क, सॉरी मैं समझा नहीं. वर्क के बारे में जाना था। नहीं, ये ऐसे सेशन है जो जैसे ये लोग एक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, जैसे उन्होंने जॉब में गए हैं, कैसे जॉब अप्लाई किया है। तो वो जनरली मतलब एक पूरा एक तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने खुद किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये ऐसे सेशंस है। कोई स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड ऐसा कोई सेशन नहीं है। तो आपको कोई भी सवाल है, आप ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपका फायदा होगा। Cool. Hey Simran, thank you so much. You're on mute, Simran. So sorry. How are No you? worries. I'm good. I'm good. So yeah, I've meanwhile I just gave your introduction, so I think you can take it over. Hi. Good evening, everybody. Hi, Anupriya, Graphic Zone, Kshitij, Ajay, Kumar Mishra, Arpita. Hi, everybody. Hi, Anupriya was in the last session as well, I think. Hi, how are you? We'll wait for a couple more minutes for others to join. Yeah? Yeah, you can start, Simran, slowly. Maybe you can ask them some queries they have. हाँ, कोई भी क्वेरी है आपको अभी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बताओ आप मेरे को. प्लीज बताइए क्या पूछना है आपको. आई थिंक अजय wants to ask something. अजय, is he there? हेलो, हाय, कैसे हो आप? ठीक है। मैं बताओ क्या पूछना है आपको. वर्क क्या है ये? हाँ, आज का सेशन उसी के ही बारे में है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इधर रह सकते हैं तो आपको वर्क के बारे में ही बताऊंगी मैं.
ज्यादातर तो यही है कि आपको जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, क्या स्किल की नीड रहती है, आप अपना स्किल कैसे डिस्कवर या डेवलप कर सकते हैं. सो अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट दैट. और थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं. तो और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस ये सेशन शुरू होने से पहले, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. बट इस सेशन में जैसे सिद्धार्थ ने बताया, we'll be covering I can tell you about my experience as well, and मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ we'll also be talking about how you can get your first job. बहुत सिंपल स्टेप्स हैं वैसे तो, कि आप अपनी पहली नौकरी, आप एक तो अगर आप मुझे सब लोग बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या आप नौकरी करते आ रहे हैं और अभी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं खुद को, आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो इट बी वेरी हेल्पफुल. मैम मैं कॉलेज के साथ जॉब कर अच्छा, कॉलेज में है और जॉब कर रहे हैं. जॉब करना चाहता हूँ. अच्छा, कॉलेज में है और जॉब करना चाहते हैं. और कोई? अर्पिता, क्षितिज, अनुप्रिया. Hello, या, हाय. hello. यस, हाय, हाउ आर यू? हाँ, I am शैलेंद्र मिश्रा. ओके, हाउ आर यू? मैम एक्चुअली मैं बीटेक होल्डर हूँ इलेक्ट्रिकल से. अच्छा अच्छा. लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो रिज्यूमे है वो कहीं बहुत ना के बराबर सेलेक्ट होती है. ऐसा क्या है, ऐसे कि क्या रिज्यूमे में ऐड करें कि ये रिज्यूमे मतलब कि हर जगह सेलेक्ट हो. हाँ, वो भी चीजें हम इसी सेशन में कवर करेंगे कि रेज्यूमे में कौन सी चीजें कहाँ जानी चाहिए, कैसी चीजें डालनी चाहिए, उसका फॉर्मेट जी कैसे जी होना चाहिए, जी और crisp जी और जी क्लियर होना चाहिए. ज्यादातर लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि 2 पेज का रेज्यूमे नहीं होना चाहिए, एक ही पेज का रेज्यूमे रखिए, जितना जी जी जी. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ग्रास्प, उतना बेटर है. तो वो तो सारी चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं. तो आई खास स्टार्ट खास विद करके खास करके मुझे रिज्यूमे इंटरव्यू के बारे में कुछ नॉलेज मिल जाए तो बेटर होगा. किसके कि बारे में? किस टाइप इंटरव्यू. अच्छा, इंटरव्यू की. अच्छा, हाँ जी, ओके. किस टाइप का इंटरव्यू मतलब कि क्लिक करें कि हम मतलब कि कहीं सेलेक्ट हो जाए. नवरत्न कंपनी जैसे कोई बड़ी बड़ी जो नवरत्न कंपनियां हैं हाँ उनमें हाँ, सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए ऐसे. ठीक है, बिल्कुल आपको बताएंगे. जी मैं आई स्टार्ट विद शेयरिंग माय स्क्रीन. आप प्लीज मुझे बताइएगा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी आ रहे हैं. स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? जी दिख रही है. ओके. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू म्यूट देमसेल्व्स. मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी, ज्यादा नहीं है हमारे पास, 7 ही स्लाइड है, तो मैं एक अच्छा स्लाइड अच्छा. जैसे आपको बताऊंगी, जी उसको बिल्कुल. आप समझ लीजिए. और उसके बाद अगर आप, मैं आई ओपन द फोरम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके ओके. ओके. तो this topic is all about how to land your first job, how to get your first job. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये असेस करना पड़ेगा कि मार्केट में अभी कौन से ऐसे जॉब्स हैं that are very trending, what is it that you can apply for, what is it, अगर this is specifically for people जिन्होंने अभी तक, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी है, ज्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हम नहीं नहीं, मैं मेरा बीटेक है, इलेक्ट्रिकल से बीटेक है मेरा. हाँ हाँ सर. आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप खुद को म्यूट कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर एवरीबडी. तो मैं जैसे जनरली आई विल बी टॉकिंग एंड देन इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो आप प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट, जैसे हम लोग कई बार चलिए हम बीटेक करते हैं, जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, तो हमारे कॉलेज के टाइम में ऐसा था कि हमारे पास 3 साल थे पढ़ाई के, एंड वी हैड 6 सेमेस्टर्स. 6 सेमेस्टर होते हैं बैचलर्स में. अब हर सेमेस्टर में कोई ना कोई नया सब्जेक्ट आता है. तो द आइडिया इज कि आपको हर चीज के बारे में, मास कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में या इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में जितनी सारी चीजें हैं, आपको सब चीज के बारे में सिखाया जाता है. आप ऑनर्स भी पिक करते हैं. मास कम्युनिकेशन जो मैंने किया था उसमें भी ऐसा था कि हमारे पास ऑनर्स थी,
या तो आप जर्नलिज्म ऑनर्स करिए या आप एडवर्टाइजिंग ऑनर्स करिए। मैंने जर्नलिज्म चूज करी थी, बट अगर आप जर्नलिज्म में भी देखें तो बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो इसलिए आपको सब फील्ड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। सो व्हाट इज इट दैट यू शुड एक्चुअली पिक फ्रॉम। तो अभी अगर हम इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो हमने देखी है जिसपे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। एक तो जैसे ही कोविड गया, हमने हेल्थ केयर का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा देखा है। हमने हेल्थ केयर के सर्विसेज देखे हैं, हमने टेली हेल्थ देखा है, हमने डिजिटल हेल्थ देखा है। टेली हेल्थ के बहुत सारे, जैसे हमने कोविड में देखा था कि टेली हेल्थ इज समथिंग जिसमें आपको हेल्थ या डॉक्टर वगैरह की एडवाइस मिलती है ओवर फोन कॉल। कोविड में भी ऐसा था, सब कोई कहीं हर जगह नहीं जा पा रहे थे, डॉक्टर को दिखाने भी लोग नहीं जा पा रहे थे, होम कम्युनिकेशन हो रहा था। सो डिजिटल हेल्थ में बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है, हेल्थ केयर एक्सपेंशन हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर कमिंग अप विथ दिस आइडिया कि वी विल बी प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर मैनेजमेंट, नर्सिंग, इसका पूरा बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर हम बीटेक की भी बात करते हैं सर के एग्जाम्पल में, तो हेल्थ केयर का आईटी भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं तो इवन वहां पे भी सेम चीज है। इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन आईटी सेक्टर, आप स्पेसिफिकली हेल्थ केयर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स हैं। अगर ऐसी जगह हमको कोई पता है जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड्स हैं और वहां पे जॉब्स हो सकती हैं, देन हमारा चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दोस जॉब्स आल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो एक तो हमने हेल्थ केयर का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा देखा है। अगर कोई डिजिटल मीडिया में काम कर रहा है तो वो स्पेसिफिकली ऐसे ब्रांड्स की तरफ दे कैन रीच आउट टू सम ब्रांड्स जो हेल्थ केयर में या तो स्टार्टअप्स हैं या फिर उन्होंने अभी अभी डिजिटल हेल्थ शुरू किया है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरी एक दोस्त है जो है कंटेंट राइटर ही, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से उन्होंने कंटेंट राइटिंग का काम किया है। उसके बाद उन्होंने डेंटल हेल्थ का काम शुरू किया था। शी इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट। हाउएवर डेंटल हेल्थ में इतनी ज्यादा जॉब्स उनको मिली नहीं, तो उन्होंने सोचा कि आई विल वर्क ऑन माय कंटेंट राइटिंग पार्ट ओनली, क्योंकि राइटर्स की नीड हमेशा होती है। राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, इन सब की बहुत ज्यादा एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम नीड होती है, क्योंकि कोई भी नया स्टार्टअप आएगा, उनको अगर ऑनलाइन अपना काम शुरू करना है, उनको ये 3 लोग तो चाहिए ही चाहिए अपनी टीम में। सो शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर, फिर वो कंटेंट मार्केटिंग में घुसी, फिर वो कंटेंट लीड बनी। उन्होंने ये देखा था कि हेल्थ केयर का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर एक नायका या नवरत्न या मैरिको या हिंदुस्तान यूनिलीवर में राइटर का जॉब नहीं मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स बन चुके हैं, यहाँ पे राइटिंग का कोई जरूरत नहीं है, नवरत्न बन चुका है, सालों तक वही बिकेगा, उसमें कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कोई ब्रांड्स हैं जो हेल्थ केयर में नए आए हैं, एंड इफ यू गो ऑन टू अप्रोचिंग देम, देन उसने यही सोचा कि क्योंकि हेल्थ केयर नया है, मुझे उनको अप्रोच करना चाहिए। सो शी स्टार्टेड वर्किंग, शी अप्लाइड टू दिस कंपनी कॉल्ड मेड्यूलैंस, और उन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया। अब ये कंपनी, जैसे आईपीएल होते हैं, अब हमने देखा होगा प्लेयर्स को कुछ भी चोट लग जाती है, ऑन स्पॉट टीम पहुंच जाती है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अब वो तो उनका ऑफ ग्राउंड काम है। ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा काम होता है, बिकॉज आप और मेरे जैसे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ केयर एक्सपेंशन को आप टारगेट कर सकते हो, ये की इंडस्ट्री ट्रेंड है। अनदर ट्रेंड इज एआई, डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको अगर टूल्स यूज करने आते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। लास्ट कॉल पे भी मैंने बहुत सारे टूल्स की बात करी थी, तो ऐसे सेशंस में हम आपको और टूल्स सिखाते हैं। सो आप एआई के टूल्स को सीखिए, and once you have all the knowledge about AI tools, you can reach out to startups or you can reach out to companies जो वो AI tools specifically use करते हैं। For example, अभी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, वो लोग कीवर्ड मार्केटिंग उनकी बहुत ज्यादा चलती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसमें कीवर्ड्स के टूल्स यूज होते हैं, ये सर्च करने के लिए कि लोगों ने किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत ज्यादा सर्च दिखाए हैं। सो अब मुझे टूल आता है that helped me to get the job. Okay, तो आप AI tools के बारे में पढ़ सकते हैं, आप ऐसे हाई डिमांड टेक टैलेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं जो कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में, अगर आप आईटी या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज, जैसे मैंने स्टार्टअप्स की बात करी थी, स्टार्टअप्स हर सेक्टर में, आपके जो नीश से नीश सेक्टर होगा
उसमें आपके पास एक कोई ना कोई स्टार्टअप होगा, क्योंकि हर दिन 50 कंपनियां नहीं खुलती हैं, और अगर नई कंपनी है उनको टैलेंट्स चाहिए होंगे. इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, दे विल बी रेडी टू हायर यू, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास यूजुअली पैसा होता है, बट फंडिंग मिल जाती है उनको, बट दे डोंट रियली हैव इनफ पीपल हु वुड वर्क विद देम उतना अच्छे से, और या फिर उतना हार्ड वर्क करके. अनदर थिंग इज कि अगर हम इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात कर ही रहे हैं, तो अनदर थिंग that I would like to talk about is what is the current job market. अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे मैं कई सारी विमेन से बात करती हूँ, वो ये बोलती हैं कि वी वांट समथिंग जो वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि हम अपने घर पे भी ध्यान दे सकें, हम अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकें, और हमको घर से बाहर नहीं निकलना है. और ये वर्क फ्रॉम होम वाला पूरा हमने ट्रेंड ही कोविड के बाद देखा है. सो अंडरस्टैंड, आप पेपर लीजिए, उस पर लिखिए आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, कौन सी कंपनीज आप कैसी ऐसी कंपनीज जिनके लिए आप काम करना चाहेंगे. फिर आप उनका इंडस्ट्री एनालाइज करिए, ये कंपनीज कौन सी इंडस्ट्री से आ रहे हैं. हमने अभी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अभी बूमिंग पे हैं. फार्मा हमने देखा है कितना ज्यादा बूम करी है आफ्टर कोविड, और स्टार्टअप्स हैं, और एआई कंपनीज हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं. तो आप इन सब कंपनीज की इंडस्ट्रीज की लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ, ये वाली इंडस्ट्रीज है जो अभी ट्रेंडिंग में है और हम इस पे फोकस करेंगे. अब आपको किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए. आपको हाइब्रिड चाहिए है जिसमें आप घर का ध्यान रखते हैं और आपको ऑफिस भी जाना है, और आपको ऐसा चाहिए कि आपको कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम करना है. देयर आर लॉट ऑफ मेन ऑल्सो जिनका ऐसा कुछ ना कुछ रहता है कि या तो दिल्ली बॉम्बे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, या कुछ ऐसा रहता है. सो व्हाट इज इट दैट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर. ठीक है, वो चीज आप देखिए और उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए. सो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसी जगहों पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप 100 जगहों पे अप्लाई करो, पर आप ढूंढ सिर्फ 2 तरह की जॉब रहे हो, उसमें से आप 100 जगह अप्लाई कर लोगे, बट ओनली 2 आर रेलेवेंट, इवन फॉर द एम्प्लॉयर एंड इवन फॉर यू. तो वो आपकी रिजेक्ट होनी ही है बाकी 98, और हमको उस बात से रिजेक्शन मिल जाएगा, या हम डिसहार्टन हो जाएंगे कि अरे मेरे तो 100 में से सिर्फ 2 जगह से ही रिस्पॉन्स आया, बाकी जगह से रिस्पॉन्स नहीं आया. तो ऐसी जगहों पे हम अप्लाई क्यों करें जहाँ पे हमारा जाने का मन नहीं है, या फिर जो ट्रेंडिंग नहीं है, बूमिंग नहीं है, या जहाँ पे हमको पता है कि बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी होगी. नाउ दैट यू हैव मेड द पेपर, आपने अपने पास एक पेपर रेडी कर लिया. अब सेकंड थिंग ये है कि आप खुद को एनालाइज करिए. पहले आपने मार्केट को एनालाइज कर लिया, नाउ यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ. What is it that are your trends? What is it that are your weaknesses? What is it that you can do? What is it that you have studied? What is it that you cannot do? तो आप उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए. आप उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए. You have to ask yourself a couple of questions. One, can I take a moment, Siddharth? Just one moment. Sure, sure. कोई भी सवाल आपका कुछ भी हो तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कीप नोटिंग इट इन द चैट बॉक्स. सिमरन विल बी बैक. सिमरन आएंगी एक मिनट में, तो तब तक आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ताकि आप भूल ना जाए. यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट यू गाइस डोंट फॉरगेट इट. Once she is back, we can ask her the question. अगर आप अपने फोन से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस वाले मेन्यू पे इन कॉल मैसेजेस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप चैट बॉक्स देख सकते हैं. If you guys are logging in from your phone, go to the options icon. In that you will see in call messages option. You can go into that and you can see the chat window. हाँ जी, सॉरी, मैं अकेली रहती हूँ और मुझे बदबू आ रही थी कुछ तो जलने की, और यहाँ पे दिल्ली में एसी वेसी बहुत फट जाते हैं, तो एकदम से देखना पड़ेगा. इसलिए सॉरी, आई एम बैक नाउ. सो द नेक्स्ट थिंग that you have to write on your paper are a couple of questions. I'm also dropping these questions.
ताकि आप इसको अच्छे से पेपर पे लिख सकें, ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस नहीं होने चाहिए। मेरा ये पॉइंट है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ हम अप्लाई करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा, पर उससे ये होता है कि हम डिसहार्टन भी हो जाते हैं प्रोसेस में। सब लोग यही बोलते हैं अरे 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर सही नौकरी ढूंढ रहे हो क्या आप कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपके लिए सही है क्या? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। वरना तो रिजेक्शन ही आएगा ना, और तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर मैं राइटर हूँ और मैं इंजीनियर की नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी तो नहीं हो पाएगा, या मैं राइटर हूँ और मैं एआई की नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी, उनको पता है कि मुझे वो स्किल्स नहीं होंगे जो एक इंजीनियर को होंगे, तो मेरे को लेने का पॉइंट ही नहीं है। सो दे विल रिजेक्ट माय सीवी राइट देन एंड देयर। So these are some of the questions that you can ask yourself, write them down on a paper. What are my technical skills? आपको टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है? जैसे अगर मैं एक मार्केटियर की बात करती हूँ तो उनको एनालिटिक्स आएंगे कि हाँ मेरे इंप्रेशंस इतने आए, इससे मुझे ये करना चाहिए, एनालिटिक्स इतने हैं, 10,000 मेरे व्यूज आए रील पे, इस रील में क्या अच्छा था जो मैं अगली रील बना के वापस उसको वायरल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा टेक्निकल स्किल होगा राइटिंग, ऐसा क्या मैं लिख सकती हूँ जिससे सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस हो जाए और मेरा सामान खरीद के ले जाए। ठीक है, किसी कोडर का टेक्निकल स्किल होगा कोडिंग, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, विजुअल डिजाइनर है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर है, उनका स्किल होगा डिजाइन, राइट। सॉफ्ट स्किल्स क्या है मेरे, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको टीम में कहाँ रखा जाएगा। इंटर्न्स को सबसे नीचे रखा जाता है, उनको पता नहीं होता कम्युनिकेट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, दूसरे को समझाएंगे कैसे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी और का ट्रेट होगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती है कि है, कुछ लोग फटाफट उसको पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों का होता है कि नहीं मेरे को सबको लीड करना है, आई कैन लीड द वे। सो व्हाट आर योर सॉफ्ट स्किल्स आल्सो एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स यू आर कंफर्टेबल विद। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लोग ब्रांड में काम करते हैं, लोग एजेंसी में भी काम करते हैं, है ना। सो कई लोग बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ब्रांड में ही काम करती थी, मेरे को 10 से 7 का नौकरी पसंद है, एजेंसी में तो रात को 12-12 बजे तक काम करना पड़ता है, मेरे को नहीं चलेगा। हाउएवर ऐसा भी होता है कि ब्रांड में एक ही तरह का काम होता है, एजेंसी में बहुत सारी तरह का काम होता है। सो अगर आप ऐसे हो जिनको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पसंद है तो आप एजेंसी में जा सकते हो जहाँ पे नए नए तरह का काम होता है ना। और अगर आप ऐसे जिनको स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है तो आप ब्रांड में जा सकते हो। डू यू लाइक कॉर्पोरेट सेटिंग्स, डू यू लाइक क्रिएटिव रोल्स, डू यू लाइक टीम बेस्ड रोल्स। राइटर के लिए टीम कुछ होता नहीं है, मार्केटियर के लिए भी टीम कुछ होता नहीं है। अगर टीम होता है तो इतना ही, हाँ ये राइटर है, इसने डिजाइन बना के दे दी, ये डिजाइनर है, और अगर कोई शूट कर रहा है कुछ मार्केटिंग वीडियो तो हाँ ये मेरा मॉडल है, इतनी ही टीम होती है। और सबको बता दिया जाता है महीने की स्टार्टिंग में ये तुम्हारा काम है, मुझे दे दो, बस खत्म बात। तो मार्केटियर का भी इतना कोई टीम बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होता है या टीम बेस्ड रोल नहीं होता है, सोलो रोल होता है। एंड मैं अगर आपको एग्जांपल भी दूं, मैं आपको बार बार अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई हैव बिन थ्रू द सेम जर्नी। मैंने सेम जर्नी करी है जहाँ पे आप थे, मैं भी ऐसे ही सेशंस अटेंड करती थी, मुझे भी पता नहीं था, एक जॉब से तो फायर भी हो गई थी, पता समझ में ही नहीं आया क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। सो आई हैव बिन देयर, इसलिए मैं आपको बार बार अपना भी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे सोलो काम करना बहुत पसंद है, इसलिए आई अंडरस्टूड कि ये सारे लीडरशिप मैनेजमेंट ये सारे काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कोडर्स बहुत इंडिविजुअली काम करते हैं, खुद का कोडिंग पे ध्यान देना है, राइटर्स बहुत इंडिविजुअली काम करते हैं, डिजाइनर्स इंडिविजुअली काम करते हैं, बस ब्रीफ आ जाता है। तो आपको किस तरह का काम करना अच्छा लगता है आप वो देखिए। उसके बाद आपको अपनी स्किल सेट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गैप लग रहा है, जैसे समझो किसी को राइटर बनना है, ठीक है, सबको जिनको भी राइटर बनना है उनको पता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, पर उनके ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं, उनको बहुत अच्छे शशि थरूर के टाइप के वर्ड्स नहीं आते हैं। सो दे वुड नो वेयर दे आर लैकिंग, तो वो वहां पे काम करेंगे। तो आप काम करना भी खुद पे सीखिए, बिकॉज आज के टाइम में इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू वैल्यू द वन हु अपस्किल्स देमसेल्व्स। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया इस बारे में एग्जांपल देती हूँ। मैंने आई हैड डन माय बैचलर्स, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, मैंने कुछ 5-6 साल तक काम किया। उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे जो मैंने पढ़ा था और मुझे जो आता था, मैंने तो वो सब कुछ समझ लिया, वो सब कुछ कर लिया, अब इससे आगे कहाँ जाऊंगी मैं। एंड दैट वाज अ टाइम दैट आई डिसाइडेड टू अपस्किल माई सेल्फ। ठीक है, मैंने अपस्किल किया खुद को,
नाउ अपस्किलिंग मीन्स मुझे कंटेंट राइटिंग आता था, कंटेंट मार्केटिंग आता था, अब उसके साथ साथ वाले रोल कौन से हुए? ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा डिजाइन एलिमेंट हो गया, ब्रांड अंडरस्टैंडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एड्स कैसे रन करते हैं, इंस्टाग्राम कैसे संभालते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कैसे लाते हैं, ये सब साथ साथ का काम हो गया। तो आई एम स्टिल डूइंग कंटेंट मार्केटिंग, पर मैं उसके साथ वाले भी बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। ठीक है, मेरी खुद की कंपनी में उनको बहुत अच्छा लगा, अरे आपके पास जो काम था वो तो कर ही रहे हो, साथ में आप और भी काम लेना चाहते हो, बिल्कुल लीजिए। इंडस्ट्री में भी जिनसे मेरी बात होती थी उनको भी ये बहुत अच्छा लगा, अरे आप तो और चीजें सीख रहे हो, तो आप तो और क्लासेस ले सकते हो, आपको तो और चीजें आती हैं। एट द सेम टाइम मैंने वो कोर्स खत्म करने के बाद एमबीए भी किया था, बट उस एमबीए के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, एंड दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज्ड कि अपस्किलिंग में बहुत ज्यादा वैल्यू है, और लोग आपको वैल्यू भी करते हैं अगर आप ऑन द जॉब सीखना चाहते हो नई नई चीजें। क्योंकि अगर हम सीखते नहीं रहेंगे, वी वुडंट नो व्हाट इज बेटर फॉर अस। मैंने भी यहाँ से शुरू नहीं किया था, मैं अब जाके असिस्टेंट मैनेजर का रोल निभा रही हूँ, और मैं मार्केटिंग में घुसी हूँ। मैंने भी तो कंटेंट राइटिंग से ही शुरू किया था, मैं भी कॉलेज ही गई थी और मैं भी वही चीजें पढ़ रही थी जो सब पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप हमेशा खुद को अपस्किल करते रहिए। अगर कोई गैप लगता है तो उसको फिल करिए। एक तो आपको अपना स्किल समझना है, फिर आपको अपना कंफर्टेबिलिटी लेवल समझना है, उसके बाद आपको अपना स्किल सेट को स्ट्रेंथन करना है, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको कैसे बात कर सकूं, लोगों को कैसे बता सकूं, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता था, जैसे मैं क्योंकि राइटिंग के करियर से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ राइटिंग, जब मुझे मार्केटिंग के एनालिटिक्स मिलते थे मैं बहुत डर जाती थी कि अरे नंबर्स नंबर्स मैं कैसे करूंगी, मेरा तो काम क्रिएटिविटी का है, मैं तो नंबर्स नहीं कर पाऊंगी। कल को अगर मुझे 10,000 का भी बजट मिलता है और मैं उससे व्यूज या रील पे रीच या फॉलोअर्स नहीं लेके आ पाती हूँ मार्केटिंग चैनल्स के लिए, तो मेरे को तो निकाल देंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू ऑल्सो बिल्ड द कॉन्फिडेंस। उसके लिए मैंने भी ऐसे बहुत सारे सेशंस लिए थे, मैंने अपस्किल किया था खुद को, मैंने अलग अलग कोर्सेज लिए थे, फ्री के कोर्सेज लिए थे, यूट्यूब पे पढ़ाई करी, समझा कि नंबर्स लाते कैसे हैं। कोई भी चीज तब तक ही थोड़ी डरावनी है जब तक आप उसको कर नहीं लेते हो। ओके, सो यू हैव टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स। क्योंकि स्किल आप चलना सीख जाओगे, ठीक है, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे अपने अंदर की नहीं मैं चल सकता हूं, तब तक आप चल तो नहीं पाओगे ना। So you have to, the fourth thing that you have to do is that you have to build the confidence in those skills. Now the next thing that we were just Excuse me, ma'am. Yes, tell me. Can I interrupt? Yes, please go on. As per previous slide, there's a word that is personal brand. What it means? See, personal brand is that, even in the last session Anupriya you were there, I had spoken about it. Personal brand is that आपको अपना स्किल सेट क्रिएट करना है। सी, अब मैंने आपको बोला कि मैंने अपने आप को अपस्किल किया जब मैं नौकरी कर रही थी, राइट? अब कोई भी नौकरी आपको मना नहीं करेगी अगर आप उनको बोलोगे ना कि मुझे थोड़ा सा और काम सीखना है, मुझे थोड़ा सा और काम दे दो, नोबडी विल हेजिटेट, वो आपको खुशी खुशी और काम देंगे। पर मुझे वहां पे नहीं सीखना था, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। मुझे जानना है कि मेरे अंदर अगर मैं ब्रांड होती तो मेरा स्किल सेट क्या होता, मैं क्या ऑफर कर रही हूँ लोगों को। मैं किसी भी कंपनी में आज जाती हूँ तो ये मेरे मार्केटिंग स्किल्स हैं, ये मेरा कंटेंट राइटिंग स्टाइल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा रेज्यूमे है। ऑल ऑफ दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग एज अ ब्रांड। द स्किल्स, द स्ट्रेंथ, द कॉन्फिडेंस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग एज अ ब्रांड। दैट इज व्हाट इज अबाउट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। कि आप कहीं भी चले जाओ ना, you have developed these skills for yourself and they stay with you, and that is why building those strengths, working on those strengths, building your confidence and finding the loopholes and then working on them is very important. Okay, ma'am. Yeah, okay. So the next thing, anybody else has a question right now? Nobody? There were few questions in the chat. Chat box? Okay. Yeah. रेज्यूमे का अभी हम बात करने वाले हैं।
Today's session is all about cold pitching. So kindly provide some information regarding cold pitching and how does it differ from warm pitching. Actually, we had covered cold pitching in the last session, but I'll give you a little. You also asked about personal brands, so I'll give you a little bit about both of those things. See, if you want Ma'am, to, I didn't. huh? Ma'am, I didn't attend the first session. Acha, the last session you were not there. Ma'am, yesterday I joined, but the day before yesterday I didn't join that session. Okay. So, see, cold pitching, we are going to talk about toward the end of it. I'll give you a little bit on how to cold pitch. Cold pitching का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं लिंक्डइन पे गई हूँ, मैंने एक जॉब पोजीशन देखी है, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नवरत्ना, कोई भी ब्रांड, बिस्लरी, कोई भी ब्रांड, वो उन्होंने जॉब पोस्टिंग डाली है और मैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज वार्म पिचिंग. ओके, जहां पे पोजीशन है मैं उसके लिए सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है. कोल्ड पिचिंग इज मेरे को सामने से कोई, मुझे पता नहीं है उनको जरूरत है नहीं है, उनके पास पोजीशन है नहीं है, उनके पास लेबर है नहीं है, मेरे को वो ब्रांड दिखा, आई सॉ देम, कहीं पे भी देखा हो, मैंने बैनर एड देखा हो, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा हो, मैंने किसी से सुना हो कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, या बस मुझे वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है. अब जैसे मैंने अपनी दोस्त का एग्जांपल दिया, वो मेड्यूलैंस में काम करती थी. अब कल को मुझे लगता है कि मुझे अपना जॉब चेंज करना है और मुझे भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है और राइटिंग की जॉब तो है ही, और नहीं भी हो. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं लिंक्डइन पे जाके मेड्यूलैंस के लोगों का आई विल ट्राई टू फाइंड उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल रीच आउट टू देम. किसी ने डाला होगा ना सीईओ ऑफ मेड्यूलैंस, तो मैं उनको रीच आउट करूंगी कि हाय, आई लाइक योर प्रोफाइल, आई लाइक द वर्क दैट योर कंपनी इज डूइंग, आई लाइक योर कंपनीज प्रोफाइल, दिस इज माय हिस्ट्री, ये मैंने काम किए हैं, या ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, और मैं आपकी कंपनी को ये सब कुछ दे सकता हूँ. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समबडी, या इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर समबडी बट यू फाइंड माय सीवी अट्रैक्टिव, प्लीज डू गिव मी अ शॉट. उन्होंने आपको आगे से चला के कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरा जॉब पोजीशन अवेलेबल है या हम किसी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला गया. आपको वो कंपनी अच्छी लगी, आपको लगा कि अगर आप उनको कोल्ड पिच करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल सकता है, सो यू रीच आउट टू देम. मेरा बैकग्राउंड ब्यूटी का है, पर अभी मैं एक मीडिया हाउस में काम कर रही हूँ. कल को मेरे को मन करता है कि नहीं, मुझे फिर से ब्यूटी इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना है, मुझे उधर ही काम करना है, तो मैं सारे ब्यूटी के ब्रांड्स लूंगी जितने भी हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जितने भी आप पकड़ लो, नायका, पर्पल, काइंड लाइफ, टीरा, जितने भी ब्रांड्स आप देखते हो एड, मिंत्रा पे भी ब्यूटी है, आजियो पे भी ब्यूटी है अब तो. व्हाट आई विल डू इज, आई टेक ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स और मैं उनके ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दूंगी, मैं उनके लिंक्डइन पे मैसेज डाल दूंगी, मैं उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दूंगी, फेसबुक पे मैसेज डाल दूंगी. ईमेल एड्रेस मुझे किसी के मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, वहां पे उनको रीच आउट करूंगी कि मुझे दिखा था आपका प्रोफाइल, आपके ब्रांड का प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड वांट टू वर्क हियर, तो अगर आपके पास कोई पोजीशन अवेलेबल हो, ये मेरा स्किल सेट है, ये मैं तुमको ऑफर कर सकती हूँ, प्लीज डू गिव इट अ थॉट. ओके, दैट इज व्हाट कोल्ड पिचिंग इज अबाउट. नाउ ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, create a standout resume and tailored cover letters. Resume is very important because this is the first thing that the employer is ever going to see about you. First paper जो उनको मिलता है, that is resume. Okay, so हम क्या करते हैं, हम एक resume बना देते हैं और easy apply LinkedIn पे hit करके और हम सबको वही resume लगा देते हैं. But अब एक जॉब पोस्टिंग के लिए कम से कम 5-6 हजार रेज्यूमे अगर आ रहे हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर रेज्यूमे टू स्टैंड आउट. ओके, मैंने एक बार एक रेज्यूमे देखा था एक कॉपीराइटर का, जिसने, जैसे वो पार्ले जी को अगर अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं तो उन्होंने एक पार्ले जी बिस्किट दिखाया, उसकी टैगलाइन दी और उसके बारे में वहां पे एरो डाल के दिखाया कि अगर मैं पार्ले जी का मार्केटिंग या कंटेंट राइटर होता तो मैं इसको ऐसे कर सकता था. ओके, तो सिस्टी हरे कृष्णा, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज?
Actually, I'm talking, but you're. ओके सो तो इसलिए सजेस्टेड ये रहता है कि एक रेज्यूमे हर तरह की जॉब के लिए नहीं चलेगा। अब अगर मैं राइटर हूँ, मैं बिजनेस टू बिजनेस किसी कंपनी में अप्लाई करती हूँ, जो बिजनेस टू B2B कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा टेक्निकल रेज्यूमे चलेगा। जो B2C कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा इजी गोइंग रेज्यूमे चलेगा। अगर मैं मीडिया हाउसेज में अप्लाई करती हूँ, उनके लिए अलग तरह का रेज्यूमे लगेगा। अगर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में अप्लाई करती हूँ, उनके लिए अलग तरह का रेज्यूमे लगेगा, राइट? तो वन साइज फिट ऑल रेज्यूमे अब नहीं चलता है। तो इसलिए कहा ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा रेज्यूमे बदल दोगे, पर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको जॉब जेडी दिया गया रहेगा, जेडी ये है, आप उसमें से जो मेन कीवर्ड्स है ना, जिस चीज की वो लोग जो चीज वो लोग सर्च कर रहे हैं, ज्यादातर यही होता है कि आपका रेज्यूमे भी उनके पास आ जाता है ना, तो वो लोग, उनका खुद का सिस्टम होता है। 5-6 हजार रेज्यूमे कोई एक बंदा बैठ के नहीं देख सकता है, तो उनका खुद का सिस्टम होता है। जैसे अगर वो लोग, उन्होंने डाला है कंटेंट राइटिंग, उनकी स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अगर मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में, तो उनका जो अपने आप स्कैन करने का सिस्टम होता है ना, वो ये कीवर्ड्स पकड़ लेता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज, आप जेडी में देखो क्या ऐसे बड़े बड़े कीवर्ड हैं या ऐसी स्किल्स हैं दैट दे आर लुकिंग फॉर, और वो कीवर्ड आप अपने रेज्यूमे में ऐड करो, ठीक है? दिस विल हेल्प यू। The next thing is, I'll also drop this in the chat box, कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। आपके बारे में एक समरी होनी चाहिए जो बिल्कुल ये बोले दिस इज व्हाट आई कैन प्रोवाइड, मैंने ये किया है, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, ये वो दिख जाएगा आपके रेज्यूमे में। आपको अपने समरी में, जैसे इंस्टाग्राम में लोगों का बायो कैसा होता है, उसमें ये बोला जाता है कि आई एम दिस पर्सन, I work as this person, and this is what I can provide. If I was to give something in my resume, तो मैं ये बोलूंगी that I am a creative content writer who can bring in this many views, or who can write for such audiences, or who can make your brand loved by audiences. ठीक है? एक तो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, और उससे तुम्हारे ब्रांड को क्या बेनिफिट है। एट द एंड ऑफ द डे सब अपना बेनिफिट देखने के लिए ही बैठे हैं, राइट? सो उससे आपके ब्रांड को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ओके, एजुकेशन बताइए आप, बट उसको आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेन बॉडी में सिर्फ आपका काम आना चाहिए, आपने क्या काम किया है, दैट हैज ऑल ऑफ दोस कीवर्ड्स दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। या यस मैम, एक चीज कंफर्म करना आपसे। हाँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए किस टाइप का रिज्यूम होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन फील्ड या ऑपरेशन फील्ड के लिए? हाँ, ये जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ रेज्यूमे के लिए, वो सब रेज्यूमे में चलती है। लेकिन मैम, जैसे आप जो बता रहे हैं वो उसका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड जो है अलग है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मेरी फील्ड का, जो मेरी फील्ड है, आप वो अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास भी जेडी आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि ये हमको स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये बंदे में राइट। आप वो कीवर्ड उठाइए, आप वो स्किल्स उठाइए, आप उसको अपने रेज्यूमे में डालिए। जब आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपका नाम बड़ा ऊपर आएगा, उसके नीचे आपका 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन आएगा, तब आप बताइए कि आप कौन है, और आप कौन है तो आपका नाम आ चुका है, तो आप क्या काम करते हैं। वहां पे मैंने बताया कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, आप क्या काम करते हैं वो आप डालेंगे, और आप कंपनी को क्या दे सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग में मैं भी ये बोल सकती हूँ ना कि मैं आपकी कंपनी को बढ़िया कंटेंट दे सकती हूँ, नहीं, हमको ये नहीं बोलना है, हमको एंड रिजल्ट बताना है कि वो बढ़िया कंटेंट से कंपनी को मिलेगा क्या, कंपनी का क्या फायदा है इसमें, आपकी ऑडियंस आपको पसंद करेगी। मैं आपको ऐसा कंटेंट लिख के दे सकती हूँ जिससे आपकी ऑडियंस आपका सामान खरीदेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एक्सरसाइज। ये 4 चीजें आप अपने में अंडरस्टैंड करिए, पेपर पे लिखिए कि ये सारी चीजें मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी टेक्निकल स्किल है, ये मेरी सॉफ्ट स्किल है, और ये स्किल्स हैं जो आप यूज करके कंपनी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे मेरे कहने का कंसर्न ये है कि अगर कोई रिज्यूम अगर बन रहा है तो 1 से 2 पेज में बन रहा है, कोई 2, 4, 5 पेज में बन रहा है, तो कितना पेज उसमें होना चाहिए, एक रिज्यूम के कितना प्लॉट होना चाहिए? वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है।
बट जी, वही जी। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो एजुकेशन है, नाम, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, वो सब आप बीच में लाइन बना, साइड की तरफ लाइन बना के, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाइन बना के आप उसको लेफ्ट कॉलम में डालिए। आपका काम बीच में, बॉडी में काम दिखना चाहिए सर, वो अच्छा, सबसे बीच ज्यादा में Excuse ma'am. या Maximum you will try to speak in English only, ma'am, because I don't know Hindi. Here also, common language English, no, all are no, actually. Oh, I don't know Hindi, so that's why please. थोड़ा थोड़ा होता है मैं हिंदी. Please trying to maximum English. हाँ हाँ, I'll try my best. Yeah. Okay. So what I'm trying to All say, are no English, no. So Hindi थोड़ा थोड़ा person ज़्यादा है. English is a common language in this meeting, all almost persons. So that's why. okay, Yeah. sure. Yeah. So what I was trying to say is there is a JD that the company that you are applying for has posted a JD, right? What you need to do is you need to pick up the the keywords from there. आप उस JD में से keywords pick up करेंगे and you will add these keywords in your resume, because ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं. देयर आर ऑटोमेटिक सिस्टम्स दैट दीज रिक्रूटर्स आर यूजिंग बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू गो थ्रू अबाउट 5,000 to 6,000 resumes on a daily basis, right? So you need to add these keywords. आपके मेन बॉडी में रेज्यूमे के बॉडी में there should be these keywords. लेफ्ट हैंड साइड पे you have to add your soft skills. आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर सकते हैं. उसके नीचे you can add उसके नीचे you can add your education. आप अपनी एजुकेशन लेफ्ट में सॉफ्ट स्किल्स के नीचे ऐड कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो यूजिंग हिंदी अजय बिकॉज देर एक दो लोग हैं यहाँ पे उनको इंग्लिश समझ में आती है, आपको हिंदी समझ में आती है, तो आई एम रिपीटिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. तो आई होप आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज यहाँ पे मैसेज में डाल सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू सेपरेटली. सो कोई भी ऐसे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हों पे आपने काम किया. जैसे कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर हु हैव कॉलेज का एक्सपीरियंस, राइट? सो फॉर कॉलेज एक्सपीरियंसेस यू डोंट रियली हैव एनी ऑफिस वर्क दैट यू कैन शो ऑन सीवी. कोई भी ऑफिस वर्क आप सीवी पे शो कर नहीं सकते हैं. तो ऐसे में अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आपने काम किया, आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करिए. उस प्रोजेक्ट्स में व्हाट इज इट दैट यू वर हैंडलिंग. So you mention these projects and talk about what are the things that you were handling in these projects. Now, 2-4 tips हैं resume building की. There are a couple of tips. I am adding them here. Okay, bullet points add करिए. Bullet points में समझाइए. There is no space, time, energy for people to go through a whole ass paragraph. Okay, तो आप paragraph में मत लिखिए, bullet points में समझाइए. एक पेज तक रखिए. ट्राई टू कीप इट टू 1 पेज अनलेस यू हैव एक्सटेंसिव रेलेवेंट एक्सपीरियंस. अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है तो ऑफ कोर्स आप अपना काम तो नहीं हटा सकते हो. तो यू कैन शो द एक्सपीरियंस एक्सटेंसिवली. आप 1 पेज से 2 पेज पे जा सकते हैं. पर अगर आपका काम इतना है कि 1 पेज पे हो जा रहा है खत्म, इफ योर वर्क इज सो मच दैट योर रेज्यूमे इज गेटिंग एंडेड एट one page, then keep it to 1 page. It's okay. 1 पेज भी रख सकते हैं आप. आपको जबरदस्ती लंबा करने की जरूरत नहीं है. आप एक्शन वर्ब्स यूज करिए कि मैंने ये किया था. You need to use action verbs that are designed, developed, led, achieved, managed. जैसे अब अगर मैं if I'm talking about the projects I did, अगर मैं ये बात करती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे, तो अगर मैं ये लिखूंगी कि मैंने कंटेंट लिखा था, if I just say that I have written content, that वो तो क्या कंटेंट लिखा था, वो तो लिखना ही था आपको, आपका काम है. बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने कंटेंट डेवलप किया था फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट वुड cater to a specified target audience, right? So you can and you need to use action verbs that would show powerful words that would show more power that you have achieved this. आपने ये चीज अचीव करी है, आपने डेवलप किया, आपने मैनेज किया, आपने लेड किया, आपने लीड किया उस चीज को. You have led that thing. So there are a lot of action verbs that you can use जिससे कॉन्फिडेंस दिखता है. सबसे बड़ी बात यह है कि उससे कॉन्फिडेंस दिखता है आपकी सीवी में. ओके, कंसिस्टेंसी रखिए.
ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होते हैं सीवी में. Your grammatical errors are not entertained in the CVs. If you have any grammatical error, एक पेज के CV पे भी अगर आपका grammatical error है, तो your CV is rejected. Simple. Make sure there are no grammatical errors. Grammatical errors नहीं होने चाहिए. आप please इस चीज को ensure करिए. Font size देखिए, same font size होना चाहिए. आपने जो font use किया है, the font that you have used should also be consistent. Same तरह का font होना चाहिए. Spacing वैसी होनी चाहिए. कई लोग Microsoft में बनाते हैं. A lot of people create their CVs or resumes in Microsoft Word. So when you put it in PDF and then when you export it, आप उस PDF में डाल के export करते हैं, then it becomes very difficult. वो आप Microsoft में table वेबल डालते हैं and the entire alignment is off. आप बनाते कुछ हो, पहुंचता कुछ और है. Like you make something and something else reaches the recruiter. Okay, so you make sure that your font size, spacing, format, everything is perfect. All right. Now, Ma'am, yeah. ma'am, is it okay to use templates, ATS templates? Of course, use templates. Don't worry about it at all. Use templates, but just make sure कि आप उस template में you're using some or the other element that defines you. आप अपना content style वैसा रख सकते हो, content आप जो लिख रहे हो ना, उसका बोलने का तरीका अलग रख सकते हो. But अगर आप वैसा ही template use करोगे जैसा सब लोग कर रहे हैं, तो आपकी CV would not stand out. So you can use templates, but try and add a personal element or a customized element to your template. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Next thing is build a LinkedIn profile that would attract your recruiter. Okay. How many of you all here are actually using LinkedIn? आप comment आप ये chat box में बता सकते हैं. I have been using LinkedIn to apply for jobs. Is there anybody? Nobody? Okay. So हाँ, अर्पिता ने कवर लेटर का यूज कर सकते हैं, ये पूछा है. कवर लेटर का एक पूरा फॉर्मेट होता है. वो फॉर्मेट मैं एंड में ही इस चैट बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख सको. कवर लेटर इज समथिंग दैट इज अ बिट मोर पर्सनल. ऑनेस्टली मेरे को भी बहुत ज्यादा मौत आती है कवर लेटर लिखने में, because आप ऑलरेडी अपना CV, you are already personalizing your CV, you are already editing your CV, you are doing everything on your CV only. उसके बाद you are reaching out to, if you're cold pitching, then you are reaching out to the clients as well. उसके बाद भी you have to create a cover letter that is again a piece of personal communication. So it is a lot to deal with, but it's okay. It helps you go a bit more further into your job application. तो cover letter अगर आप लिख सकते हो प्लीज लिखिए. ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है. जैसे हमने कोल्ड पिच की बात समझी थी, वैसा ही होता है. आप कोल्ड पिच का भी जैसे एक फॉर्मेट बना के आप रख देते हैं, वैसे कवर लेटर का एक फॉर्मेट बना के आप रख सकते हैं, बेस कॉपी. आप कुछ चीजें यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएंगे. ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे कि मैंने आपकी ये अपॉर्चुनिटी देखी थी, थोड़ा सा उसको यहाँ वहाँ पे एडिट कर सकते हैं. उस जॉब के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आप वो डाल सकते हैं, वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं. और आप बॉडी कॉपी में ये हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने अगर पिछला कहीं पे काम किया था या आपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट क्या रहा है और वो रिजल्ट कैसे बढ़ गया आपकी वजह से. ओके. और क्लोजिंग में आप ये बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग टू हियर फ्रॉम यू एटसेट्रा. ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको एंड में यहीं पे दे दूंगी ताकि आप लोग यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. Ma'am, is there any ideal time or some week to send cold pitches for higher response rate? So ऐसा the thing is that this works for you. There is this particular thing that works for me. Maybe मैं जब कोल्ड पिच कर रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रीलांस के लिए कोल्ड पिच कर रही हूँ. ठीक है,
तो मैं अगर फ्रीलांस के लिए कोल्ड पिच कर रही हूँ, मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सैटरडे संडे को ही जगते हैं, या वो सैटरडे संडे को सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स को ही कोल्ड पिच कर रही हूँ। तो स्टार्टअप्स तो 7 डेज अ वीक काम करेंगे, उनके सीईओ सीएमओ को तो खूब काम करना है ना। अब अगर हम बिस्लरी का बात करते हैं, हम ओशन वाटर का बात करते हैं, यहीं पे मेरे पास बॉटल पड़ी है, ओशन वाटर का बात करते हैं। नाउ दिस ब्रांड इज डेवलप्ड, इसके जो सीएमओ सीएफओ हैं वो मंडे टू फ्राइडे 10 से 7 के बीच में ही अवेलेबल है, जिसमें ज्यादातर बात तो यही है कि इनके पास सुबह 15 मिनट का टाइम होता है लिंक्डइन देखने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, बाकी दिन इनका मीटिंग में ही जाता है। सो इफ यू आर रीचिंग आउट टू सच पीपल, then you have to make sure that you are cold pitching between 10 to 11 in the morning or 9 to 11 in the morning. Okay, if you are reaching out to startup people, then you are pitching to them over the weekends, because that is the time that they actually get the time to get to their LinkedIn. वो अपना LinkedIn plan बनाते हैं, वो LinkedIn पे messages पे reply करते हैं. So it is what works for you. It is what works for the industry that you are applying for. You need to analyze that for yourself. Okay. So coming back, build a LinkedIn profile that attracts your employers. So Arpita, Anupriya, Kshitij here are using LinkedIn. Is there something particularly that you like on LinkedIn? Is there something that you dislike on LinkedIn? Yeah, have you ever gotten a job from LinkedIn? Any experience that you would want to share in the chat box? Okay. Okay, nobody is interested in sharing anything. कोई बात नहीं है। अब LinkedIn तो हमको पता ही है, ज्यादातर पहले तो हाँ मैम नॉर्मली अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो बीटेक परस्यू कर रही हूँ, तो अभी जॉब की तो रिक्वायरमेंट है नहीं स्टिल, बट एज अ टीपीओ कोऑर्डिनेटर मैंने कई बार कंपनीज को कोल्ड पिचिंग किया है थ्रू मेल और डायरेक्ट कांटेक्ट वाया लिंक्डइन। तो यही मेरा अब तक का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ओके ओके ओके, सो थ्रू लिंक्डइन आपने कैसे अप्लाई किया है, कोल्ड पिच कैसे किया है आपने? वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? मैम कई बार मैंने लिंक्डइन पे एचआर को कनेक्ट किया है, देन आफ्टर कनेक्ट होने के बाद मैंने डायरेक्ट मेल भेजा है, इनवाइट मेल फॉर आवर कॉलेज प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्लेसमेंट। ओके ओके ओके, एंड यू हैव रिसीव्ड आंसर्स? यस मैम मैंने। ओके, तो गिग्स वगैरह भी आपको वहां से मिले हैं लिंक्डइन पे कोल्ड पिच करने से, राइट? नो मैम नॉट येट। ओके, बट यू आर स्टिल इन द प्रोसेस और आपको जवाब आ रहे हैं, राइट? यस मैम, मेनली फ्रॉम मेल। मेनली ऑन मेल? यस मैम, इनवाइट मेल मैंने जब भेजा है तो उनकी रिस्पॉन्स आते हैं। ओके ओके, सो हाँ, हम भी आज इसी बारे में बात करने वाले, लिंक्डइन के बारे में स्पेशली, कि पहले बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते थे हमारे पास, naukri.com और ऐसे जॉब सीकर, बहुत सारे हमारे पास पोर्टल्स थे। बट आजकल 70% जो रिक्रूटर्स हैं दे आर ओनली रिक्रूटिंग वाया लिंक्डइन। ओके, सबसे इजी टास्क लिंक्डइन पे जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना ही बन गया है। Okay, so when you're applying on LinkedIn, there is one easy apply thing as well, right? LinkedIn पे भी बहुत सारे AI tools हैं where it will ask you, एक बटन आता है जिसमें वो पूछता है कि आप LinkedIn से पूछ सकते हो am I the best fit for this job? आप LinkedIn पे प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो आपका रेज्यूमे भी चेक करता है। There are a lot of options present in LinkedIn that you can experiment with. Okay, there are a lot of options. So make sure that you are using these options. Plus LinkedIn पे आपका जो बायो है ना, अगेन सेम वही बायो रखना है जो आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है, उसमें भी आपको यही one second, let me complete the point. The bio that you are using for LinkedIn, even there you have to say what is it that you can bring for the brand. This is what I do, this is how it will benefit you. Okay, everybody needs to know how will they be benefited with what you do. So when you are writing, आप जब अपना LinkedIn का समरी लिख रहे हैं, आपको सेम वही चीज फॉलो करनी है। आपको बताना है आप क्या करते हैं
और उससे ब्रांड का क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि ब्रांड यही जानना चाहता है कि उनका आपको रिक्रूट करके क्या फायदा होगा। ओके, तो आपको अप टू डेट रहना है। मैम तो बायो को भी अपडेट करना पड़ेगा क्या? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बायो ओनली। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज जो आपके नाम के नीचे बायो आता है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं, यू एक्सप्लेन व्हाट यू डू। आप भी कुछ बोल रहे थे सर? हेलो। या go on. अच्छा मैम, एक चीज, एक कंसर्न हमारा है कि एक्चुअली जो लिंडेड जॉब ऐप है, इस पे करेंट जॉब नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मिलता है वो आपका 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज आफ्टर मिलता है, बिफोर मैंने पहले का मिलता है। ओके, लिंक्डइन इज गिविंग यू एन ऑप्शन जहां पे आप ऊपर फिल्टर कर सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में जॉब आई है, मुझे वही दिखाइए। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या उसमें? हाँ हाँ, ऊपर ही फिल्टर होता है जिसमें आप अपना लोकेशन डालते हैं, हाँ, आप जो डेजिग्नेशन के लिए ढूंढ रहे हैं नौकरी वो डेजिग्नेशन डालते हैं, एंड हम्म। आप उसमें डाल सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में जो जॉब अपडेट्स आई हैं वो उस पे वो बताइए, लास्ट 7 डेज में जो जॉब अपडेट्स आई हैं वो बताइए। अच्छा 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 अच्छा, इंडेड करके एक जॉब पोर्टल है, वो कैसा है? Indeed is, see, if you have all of these things in place, the easiest way to go forward is LinkedIn. सबसे इजी LinkedIn है, पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पोर्टल्स पे तो बिल्कुल करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े पोर्टल्स हैं, जैसे बिस्लरी हो गया, मैरिको वगैरह, HUL हो गया, ये लोग आप वहां पे सिर्फ अप्लाई का ऑप्शन डालते हैं। आप उस अप्लाई पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ तो आपको इंडीड पे लेके जाता है, naukri.com पे लेके जाता है, उनके खुद के प्रोफाइल पे लेके जाता है, खुद की वेबसाइट पे, तो आप वैसे वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू कैन अप्लाई एवरीवेयर, डू अप्लाई एवरीवेयर, इजीएस्ट इज लिंक्डइन। नहीं देखिए मैम, एक्चुअली जब भी मैं इंडेड पर जॉब अप्लाई किया हूँ तब वहां से मैंने, बट कोई रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं अभी तक। आप ये ट्रिक्स के साथ एक बार अप्लाई करके देखिए, अच्छा, एंड वील हैव अ कन्वर्सेशन अगेन मीटिंग में। ओके ओके मैम। Arpita has asked, can you please tell me how to create my profile when in LinkedIn so I can make an attractive resume? Bio का वही है, what you can provide, मैं तो लिख भी देती हूँ, what you can provide for a bio. बायो में आप दो चीजें लिखेंगे, व्हाट यू कैन प्रोवाइड प्लस हाउ इट हेल्प्स द बिजनेस। अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं शो करने के लिए, इफ यू कैन शो कि जैसे अगर मैं मार्केटियर हूं एंड आई कैन टेल कि आई कैन क्रिएट रील्स विद दैट वुड, आई हैव क्रिएटेड रील्स दैट हैव जनरेटेड 1 मिलियन प्लस व्यूज। मेरे पास ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 मिलियन प्लस व्यूज बहुत बड़ी बात है, मेरे पास ये बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं वो डालूंगी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट एनीबॉडी। ओके, तो आप पहले तो यू विल से व्हाट इज इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल एंड देन यू विल से हाउ डज इट हेल्प द बिजनेस। ओके, नाउ बायो में ये हो गया। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग, और एंड कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज्यादा होता है लिंक्डइन पे। ऐसा नहीं होता बस आप आओ, इजी अप्लाई पे हिट करो और चले जाओ। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। आपने जिन कंपनीज पे अप्लाई किया है वहां पे इनमेल का ऑप्शन रहेगा, जैसे अनुप्रिया करती है, वहां पे ईमेल आईडी का ऑप्शन रहेगा, आप उनको ईमेल करो, नहीं तो लिंक्डइन से इनमेल भेजो। ओके, टॉक अबाउट योरसेल्फ, टॉक अबाउट द स्किल्स। अगेन आप जब ये मैसेजेस लिखेंगे उसमें भी आप ये बताइए कि व्हाट इज इट दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल एंड हाउ इज इट दैट इट हेल्प्स द ब्रांड। अगर आपके पास कुछ ऐसा बोलने के लिए है कि मैंने जैसे अगर आप सेल्स में काम करते हैं, अगर आपके पास ये बोलने के लिए है कि मैंने पिछली वाली कंपनी में रेवेन्यू लेके आया 30% ज्यादा लास्ट 3 महीने में, तो आप वो बताइए। ठीक है, अगर आपके पास कोई टैंजिबल नंबर्स है दिखाने के लिए तो बेशक आप पहले वो दिखाइए। ओके, एनी क्वेश्चंस नाउ? एंड एज वी जस्ट डिस्कस्ड, अगर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लिंक्डइन पे मैंने सारे जॉब्स अप्लाई कर लिए हैं या इनफ हो गया लिंक्डइन, नाउ आई हैव टू गो टू अदर पोर्टल्स, देयर इज ग्लासडोर, देयर इज मॉन्स्टर, देयर इज इंडीड, naukri.com, ये भी सारे पोर्टल्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री, कोई एक इंडस्ट्री इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको चाहिए दैट नो आई वांट टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, गो टू देयर वेबसाइट, वहां पे भी उनके जॉब पोजीशंस अवेलेबल होते हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं, अगर अप्लाई कर सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड एंड यू आर, आप कोई रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और वाचिंग सम रील ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कम अक्रॉस
brand that you really like, send an email to them. उनका email ID होगा, आप उनको email भेजिए, same चीज रखिए email पे, send an email out to them. This is called cold pitching that Anupriya was talking about. ये cold pitching होती है जिसके बारे में Anupriya बात कर रही थी earlier. तो आप कोल्ड पिच भी कर सकते हैं कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, आप जिस तरह से प्रोफाइल बना रहे हैं बहुत अच्छा है, आपका प्रोफाइल अकाउंट बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, इससे आपके ब्रांड को ये फायदा होगा. ओके, सो दैट इज अबाउट बिल्डिंग लिंक्डइन दैट वुड अट्रैक्ट योर एम्प्लॉयर्स एंड देन डिस्कवरिंग अदर स्ट्रेटेजिक मेथड्स. तो इसमें आपके बाकी पोर्टल्स आएंगे, आपकी कोल्ड पिचिंग आएगी एंड इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे अगर आप कोई ब्रांड देखते हो, जैसे कई बार ऐसा होता है यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, बहुत फेमस हो गए हैं एंड दे यू आर फॉलोइंग देम सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर लुकिंग टू बिल्ड अ टीम. दे आल्सो अप्लाई ऑन, वो तो यूट्यूब पे अपने लाइव में बातें करते हैं कि आई एम लुकिंग टू बिल्ड अ टीम और मैं एक इंजीनियर की तलाश में हूँ. आप वहां पे अप्लाई करो, उनका ईमेल आईडी निकालो, उनसे बात करो. सो देयर आर ऑल ऑफ दीज मेथड्स दैट यू कैन यूज. यू कैन कोल्ड पिच, you can go on to different portals, you can use LinkedIn and you can send emails. Master the interview process and present yourself confidently. Now we are towards almost the closing of it. Last चीज, चलो आपका रेज्यूमे भी सिलेक्ट हो गया, आपको कॉल्स वगैरह भी आ गए. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. ओके, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आपको कंपनी के बारे में पता हो, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता हो, राइट. कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम आपको क्यों हायर करें, why should we hire you, of course this is one of the first questions. उसमें आप ये बताइए what is it that you bring to the table. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आप उस कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपने पिछली वाली कंपनी में क्या वैल्यू ऐड करी थी. आप अपने बारे में बताइए. They will ask you about yourself. आपकी हॉबी बताइए, what is it that you like doing in your free time. आप बता सकते हैं सब कुछ अपने बारे में, but try to keep it to the company or the role or professional background as much as possible. Okay. Biggest weakness के बारे में जब पूछा जाता है, बेशक अपनी वीकनेस बताइए, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के पास वीकनेस ही ना हो. You tell them about your weakness, but also tell them how you are working on it. Because problem तो मुझे पता पड़ गई है, उसको solve भी तो करना पड़ेगा. I have to work towards the solution of it, right? There is a STAR method that is used. Okay. I will share that with you. Example भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. मैं चैट में डाल दूँ ताकि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं. आपसे पूछा जाता है कई बार कि give an example of a problem situation, something that you had overcome in your last organization. तो वहाँ पे आप एक सिचुएशन बता सकते हो, ये सिचुएशन थी, टास्क ये था, और जैसे अभी हमारे ऑफिस में सेल चल रही है, दिस वाज सेल, वेरी प्रेशर का टाइम था, एक्शन आपने क्या लिए थे वो प्रॉब्लम या टास्क एट हैंड को सॉल्व करने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या था. रिजल्ट में आप हमेशा यही डालोगे हाउ यू बेनिफिटेड द कंपनी और व्हाट इज द वैल्यू दैट द कंपनी गेन्ड. ओके, सो जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इन माय लास्ट कंपनी आई वाज हैंडलिंग सोशल मीडिया. ओके, एंड द आइडिया वाज कि फॉलोअर्स बहुत कम थे, तो लोग बिलीव नहीं करते थे ब्रांड को और लोग खरीदते नहीं थे. ठीक है, टेस्टिमोनियल्स थे नहीं लोगों के ज्यादा, कि जो लोग बोले कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमने बालों पे लगाया, हमने स्किन पे लगाया, स्किन अच्छी हो गई. ठीक है, तो आई वर्क टू फाइंड सच इन्फ्लुएंसर्स, सच पीपल, सच कस्टमर्स हु हैव वर्कड विद अस और हु हैव बॉट फ्रॉम अस, जिन्होंने हमारे साथ या तो पहले काम किया है या फिर उन्होंने हमारा सामान खरीदा है. सेल्स का डेटा आपको मिल जाता है, किसने कौन सा सामान खरीदा है. फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप हमारे लिए एक वीडियो बना के भेजते हो, हम आपको एक प्रोडक्ट फ्री देंगे या हम आपको एक कूपन कोड देंगे. ओके, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए, वो मैंने अपने हाइलाइट्स में डाल दिए, उसके मैंने पोस्ट बनाए इंस्टाग्राम पे, हमने अपने फेसबुक पे पोस्ट बनाए, हमने उसको प्रमोट किया कि लोगों को देखो बिफोर ऐसी थी स्किन, बाद में ऐसी हो गई. तो लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होने लगा और 6000 से फॉलोअर्स हमारे 18,000 पहुंच गए, विच इज 3x ग्रोथ. ओके, सो इफ मेरे से पूछा जाएगा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, तो मैं ऐसे आंसर करने वाली हूँ. तो वैसे ही आप अपनी चीजें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, ये सिचुएशन थी, ये टास्क एट हैंड था और इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट ये आया. ओके, एंड अगर आपने ईमेल भेजा है कोल्ड पिच के लिए, इट इज ऑलवेज
अप्रिशिएटेड कि आप उसको फॉलो अप करें। आप उनसे पूछें कि आपने मेरा लास्ट ईमेल पढ़ा था, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो आप उनके साथ फॉलो अप करिए 24 घंटे बाद कि वी हैड दिस इंटरव्यू, इज देयर एनीथिंग दैट हैज मूव्ड फॉरवर्ड, या फिर कुछ बात हुई है, हम आगे इस बारे में बात कर सकते हैं, या आप किसी कंक्लूजन पे, डिसीजन पे आए हो। ओके, so that is about mastering the art of interview process and how to present yourself confidently. And the last thing is you need to deal with rejection, whatever points they are. कई बार ऐसा होता है हम सब इधर तभी बैठे हैं क्योंकि शायद नौकरी के लिए अप्लाई किया हो, नौकरी नहीं मिली हो, रेज्यूमे डाला हो, रिस्पॉन्स ही ना आया हो। नो हाउ टू डील विद रिजेक्शन, मतलब अगर रिजेक्ट हुआ है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या तो आपने अपनी इंडस्ट्री ढंग से सिलेक्ट नहीं करी, either you have not selected the right industry or your resume has some issues, it is missing keywords that it is कंप्यूटर सिस्टम उसको ले ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें वो कीवर्ड्स ही नहीं है जो सामने वाली कंपनी ढूंढ रही है। ओके, या आप सही से इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आप वो बता नहीं पाए हो। ओके, सो देयर इज सम और द अदर लर्निंग इन एवरी रिजेक्शन, एंड रिजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप 100 चीजों के लिए अप्लाई करोगे, वो था ना डियर जिंदगी में एक डायलॉग की, सब चेयर्स पे आप बैठ के देखोगे तभी आपको पता पड़ेगा विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। So you'll apply to all of these places. Some places आपका resume accept होगा, some places आप interview stage तक पहुंचोगे, some places interview के बाद reject हो जाओगे, some places resume accept ही नहीं होगा कभी। Finally you'll land a job and you'll start working, या maybe you'll land a couple of jobs, 2-3 offers होंगे आपके पास, फिर आप choose करोगे आपको कौन सा अच्छा लगता है। Okay, so it's a part of the process. When you go through all of these things, you understand what exactly is it that you're looking for. क्योंकि अगर वो नहीं मिलता है what you are looking for, at least you are ticking off boxes of what you do not want. आप वो चीजें साइड में हटा देते हो जो आपको समझ आ जाता है कि ऐसा क्या है जो आपको एटलीस्ट नहीं चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। मैंने एज अ राइटर ये समझ लिया कि मेरे से टेक्निकल राइटिंग नहीं हो पाएगी, मुझे आईटी में काम नहीं करना है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने मेरे से सवाल पूछे थे और मैं हकलाने लग गई, अरे मुझे तो कुछ आता नहीं। सो I reached that interview only to get failed, only to face rejection, only to understand कि हाँ ये चीज मुझे नहीं करनी है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एचआर लोग हमको मना कर देते डायरेक्ट कि हमने आपका सीवी नहीं लिया। ट्राई एंड आस्क देम कि क्या रीजन था, अगर कोई फीडबैक वो आपको दे पाते हैं। ज्यादातर तो एचआर कभी बहुत बार यही बोलते हैं दैट बजट आउट ऑफ बजट है आपका रेज्यूमे हमारे लिए, या आपका स्किल सेट वी कैन नॉट अफोर्ड एट द मोमेंट, बट इफ they are giving you some tangible feedback to work upon it. Okay, and networking करो। HRs जैसे कई बार ऐसा भी होता है आपकी रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाती है, मे बी किसी और को जॉब मिल गई, आपको बोलेंगे कि वी विल सिलेक्ट यू नेक्स्ट टाइम इफ वी आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग एल्स। तो ऐसे में आप उनका नंबर सेव करके रखो। If you have not gotten a job 3 months down the line, also give them a call again, ask them आपके पास कोई job availability है क्या? We had spoken 3 months ago. So ऐसे आपका नेटवर्क बनेगा। So try building a network as well. Try going out, speak to people, build a community on LinkedIn. कई बार लोग सिर्फ LinkedIn पे ये पोस्ट डाल देते हैं कि सिर्फ पोस्ट डाल देते हैं, वो लोग ओपनिंग नहीं डालते हैं, वो सिर्फ पोस्ट डाल देते हैं that we are looking for this and this person. वहां पे कमेंट करिए, वहां पे रीच आउट करिए। कई बार जैसे मैंने बोला यूट्यूब लाइव में सिर्फ यूट्यूबर बोल देगा आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन, सो बी अटेंटिव देयर एंड कीप अप्लाइंग। Those are some of the things from today's session. So अगर अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, or you can drop them in the chat box. I think you have overshot the time a bit. Wow. So there's some questions. So if you want to quickly, I don't want to disappoint the guys. So if quickly, So I said that I'll just be dropping the cover letter structure. So I'll just do that. sure. Just 1 minute. Guys, meanwhile she's doing that, I've just pasted the feedback form couple of times, doing it for one last time. Before you leave, please do fill this feedback form. It really helps us. It helps the mentors as well. So please do fill this form before you leave, and don't forget it. This is cover letter ka, this is the
format for a cover letter, pretty basic, but you have to focus on what skill you bring to the table, value you can provide. Plus any tangible results अगर आपके पास हैं to show from your previous organizations. ये you can put this in your CV, in cover letter, and even in your LinkedIn bio. Perfect. I think, sorry. Yeah, I think it was a very, how to say, engaging session. So we missed the time. Yeah, for that. No worries, guys. We'll be bringing Simran back again for a couple of sessions. So तब भी आप सवाल जो भी है आप पूछ सकते हैं. एक हम open session रखते हैं, so you can just answer the questions. So, all right, guys, thank you so much. So we'll be concluding the the session today. Thank you so much, Simran, again for joining us and for sharing your expertise with us. I believe everyone would have found this session useful, and I think most of the queries we answered. Thank you everyone for joining in and making this a successful session. One last time, please do fill the feedback form. It will help us improve the sessions and also provide feedbacks to the mentors so that they can give you valuable content. You can visit the Apna website where you'll find the recording of this session and also other sessions that we have organized in the past. You can also check upcoming sessions over there. You can register yourself over there. You'll keep getting the notifications. As mentioned earlier, we'll have these sessions every day. Tomorrow we have at 7 p.m. So we hope to see you all there. Good night and have a great evening. Thank you again, Simran. Bye-bye. Bye, Siddharth. Thank you, everybody. Bye-bye.